I welcome you all to today's class of class 12th Commerce Business Studies, and today we will discuss unit 11, that is marketing management. And today we are going to discuss about concept, functions and philosophies of marketing. So let us begin. Marketing. I am Tej Kumar Bharadwaj, PGT Commerce at KV SECL Dhanpuri. Before we start the lesson for today, let us have a look on the learning objectives of the unit 11, that is marketing management. We have to study marketing concept, functions and philosophies, that is product, price and standards. In this we will learn the concept of marketing, functions of marketing we will discuss in detail, and explain the marketing philosophies. Dear students, these learning objectives are as per new revised syllabus which has been reduced due to COVID-19. After that we will discuss about the marketing mix in next lesson, concept and elements. In this we will understand the concept of marketing mix and we will describe in detail the elements of marketing mix one by one, which are product. Product includes branding, labeling, packaging. In this we will understand the concept of product as an element of marketing mix, and we will also discuss about product mix only in detail, that is branding, labeling and packaging also. After product mix, the next is price mix, in which basically we will try to understand what price is, what are the elements of a price, and what are the factors affecting price of a product. This is going to be a very important question for 5 marks. A direct question is asked from this topic. Then physical distribution concept. This is the topic in which a lot of deletion has taken place. Means this year we will understand only the meaning and concept of physical distribution. The rest of the things have been deleted by CBSE for this year only. And after that, the most important part, that is promotion mix. In this we will understand the concept of promotion as an element of marketing mix. Then we will discuss about the elements of promotion, which are advertising, personal selling, sales promotion and public relation. So we will discuss all these 4 elements one by one in detail regarding promotion mix. So this is all we have to discuss in marketing mix. So let us begin with today's lesson. While we discuss about marketing mix दो शब्दों से, मार्केटिंग मैनेजमेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट. तो इससे पहले कि हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें, हम लोग पहले ही मैनेजमेंट को अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं यूनिट अपने फर्स्ट बुक में. इन फर्स्ट बुक वी हैव अंडरस्टूड द लेवल्स, फंक्शंस एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट, एवरीथिंग. अब हम ये सीखेंगे कि अगर हम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को मार्केटिंग में अप्लाई करें तो व्हाट आर द इफेक्ट्स एंड व्हाट आर द टेक्निक्स. सो practical application of functions and principles of management in the field of marketing can be termed as marketing management. अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मार्केटिंग में सबसे पहले ये समझना जरूरी है व्हाट मार्केट इज. पुराने ज़माने में पहले किसी भी एक फिजिकल प्लेस को, और आज भी आप देखते होंगे, तो एक जगह को हम मार्केट बोलते हैं जहां बायर्स और सेलर्स आके मिलते हैं और अपनी म्यूचुअल नीड्स को फुलफिल करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं. म्यूचुअल नीड्स क्या हैं? कुछ नीड एंड वांट्स कंज्यूमर की होती हैं. किसी को सब्जी चाहिए, किसी को ग्रोसरी चाहिए, किसी को टॉयज़ चाहिए, किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स चाहिए, या कोई और सर्विसेज अगर कोई अवेल करना चाहता है, फॉर एग्जांपल हेयर कटिंग और एनीथिंग लाइक दैट. तो इस तरह की कोई भी ज़रूरतें जो नीड और वांट्स हैं वो कस्टमर की तरफ से नीड हैं, और बदले में जो प्राइस है वो नीड है मार्केटियर की. तो मार्केट पुराने ज़माने में एक ऐसी जगह को कहते थे जहां बायर्स और सेलर्स आकर के मिलते थे और अपनी म्यूचुअल नीड्स को सेटिस्फाई करते थे, फुलफिल करते थे. बट जैसे जैसे आप देख रहे हैं अभी ज़माना बदला है, एंड नाउ एनी मैकेनिज्म
अभी किसी पर्टिकुलर जगह का होना ज़रूरी नहीं है, किसी जगह पे आके मिलेंगे ऐसा नहीं है। कोई भी मैकेनिज्म जिसके थ्रू डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। डिमांड फैक्टर कौन है? कस्टमर है। सप्लाई फैक्टर कौन है? मार्केटियर है। तो जहां डिमांड और सप्लाई, नीड एंड वांट और उनको फुलफिल करने वाले आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे किसी भी मैकेनिज्म को हम मार्केट का नाम दे सकते हैं। सो मार्केट इन ओल्ड कॉन्सेप्ट, इट्स अ फिजिकल प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम एंड मीट, बट इन मॉडर्न टाइम्स any mechanism through which buyers and sellers can interact or need factor and demand factor can interact can be termed as a market. Nowadays digital market, आप सभी लोग शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, सो ऑल दैट ऑनलाइन, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्लेस का होना ज़रूरी नहीं है जहाँ आप मिलें। आप वर्चुअली जाएंगे और एक जिसको हम बोलते हैं स्क्रीन बेस्ड पोर्टल इंटरफेस पे जा करके आप ऑर्डर प्लेस करते हैं और चीज़ें आपके घर पे आ जाती हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से अपने पेमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी मार्केटिंग के अंदर, वो है कस्टमर, क्योंकि कस्टमर रिप्रेजेंट करता है नीड फैक्टर को। नीड, आप जानते हैं डिमांड एंड सप्लाई दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मार्केट, जिनसे मिलके मार्केट बनता है। तो कस्टमर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिमांड साइड को, और उसकी जो ज़रूरतें हैं, नीड एंड वांट्स, उनको फुलफिल करने के लिए जो प्रॉमिस करता है और उन नीड्स को फुलफिल करता है, बदले में प्राइस चार्ज करता है, उसको हम बोलते हैं मार्केटियर। सो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट, एक है कस्टमर, नेक्स्ट है मार्केटियर, और इससे पहले जो हमने पढ़ा जहाँ ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं हम मार्केट, मार्केटिंग। So market is an idea or concept describing an area, place or demand for product, while marketing include all activities. Marketing is a very wide term. Marketing केवल selling नहीं है, marketing केवल बेचना नहीं है। Selling विक्रय, marketing विपणन, विक्रय विपणन नहीं है। विपणन या मार्केटिंग एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें सेलिंग केवल एक कॉन्सेप्ट है उसका। तो आगे हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के ढेर सारे, बहुत सारे फंक्शंस में से सेलिंग केवल एक फंक्शन है। सो मार्केटिंग सेलिंग से बहुत पहले शुरू होती है और बहुत बाद तक चलती है। तो याद रखिए, मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड टर्म एंड इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ प्लेस, टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटीज़। बच्चों, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, प्लेस यूटिलिटी का मतलब होता है कोई भी चीज़ कहीं भी प्रोड्यूस हो, लेकिन उसे कहीं भी और किसी जगह पे कस्टमर हमारे कंज्यूम कर सकते हैं। सो प्लेस यूटिलिटी क्रिएट की जाती है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। ऐसे ही टाइम यूटिलिटी। सो टाइम यूटिलिटी का मतलब है कि थिंग्स बीइंग प्रोड्यूस एट अ पर्टिकुलर टाइम बट दे आर बीइंग कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर इवनली। एक पर्टिकुलर समय पे कोई चीज़ हम उत्पादन कर रहे हैं, जैसे एक खास मौसम में फल और सब्जियां आते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि मार्केट में वो हमेशा अवेलेबल हैं। तो जो हम टाइम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं वो करते हैं वेयर हाउसिंग के थ्रू। और पोजीशन यूटिलिटी, आज कोई चीज़ मेरे पास है, कल आपके पास है, तो वो जो पोजीशन यूटिलिटी है उसके लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउस दोनों को कंबाइंडली यूज़ करते हैं और एक्सचेंज मैकेनिज्म का यूज़ करते हैं। सो marketing means what a marketeer does. It includes those business activities which are involved in flow of goods and services from production to consumption. But मैं इस चीज़ को करेक्ट कर दूं, प्रोडक्शन से भी बहुत पहले मार्केटिंग शुरू होती है। यानी मार्केटिंग रिसर्च, व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं, और कंजम्पशन के भी बहुत बाद तक मार्केटिंग चलती है, जब हम अपने कस्टमर से फीडबैक कलेक्ट करते हैं। अगर आप किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक फॉर्म दिया जाता है जिसमें आपसे फीडबैक पूछा जाता है, आपको हमारी सेवाएं कैसी लगी। या बाइक खरीदने के बाद 1 साल तक वो कंपनी आपको आफ्टर सेल सर्विसेज या फ्री सर्विसेज देती है। इसका मतलब कंजम्पशन के बहुत बाद तक
प्रोडक्शन से बहुत पहले और कंजम्पशन की बहुत बाद तक भी मार्केटिंग कंटिन्यू रहता है। जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो नीड से लेकर के सप्लाई तक, ये जो बीच में जो चेन क्रिएट कर रहा है, इन सभी एक्टिविटीज़ को हम कंबाइंडली बोल सकते हैं मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं बच्चों, एक है कंज्यूमर या कस्टमर, दूसरे हैं मार्केटियर या सप्लायर्स, और एक जहां ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं दैट इज मार्केट। 3 बेसिक एलिमेंट्स के साथ हम आगे बढ़ेंगे। डेफिनेशंस, सो अकॉर्डिंग टू AMA दैट इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, marketing is related with the people and the activities involved in the flow of goods and services from producer to consumer। आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए और ये आपके एग्जाम्स में एज इट इज़ आपको लिख के आनी है। याद रखो बच्चों, डेफिनेशंस जो इन्वर्टेड कॉमास में है उनको हम अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, उनको जैसा है वैसा ही लिखना ज़रूरी है, तो इसको लिख के याद कीजिएगा। Another very important definition is by Philip Kotler, who is known as father of modern marketing management. He has defined marketing as a social process by which individual and groups obtain what they need and want through creating offerings and freely exchanging products and services of value with others। ये जो दूसरी डेफिनेशन है इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसमें से हम 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स निकालेंगे मार्केटिंग के। तो फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती है मार्केटिंग में, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। इट इज़ अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग्स एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। सो फीचर्स ऑफ मार्केटिंग, अब आप इस चीज़ को थोड़ा समझिए, मैं एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मार्केटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो है नीड्स एंड वांट्स। आप नीड और वांट में फ़र्क समझिए। पहले तो मुझे प्यास लगी है, आई एम थर्स्टी, ये मेरी नीड है। अब इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कैसे ऑप्शंस हैं? पानी पीने के लिए मैं घर में से पानी पी सकता हूँ, या अगर मैं घर के बाहर हूँ तो किसी से पानी के लिए डिमांड कर सकता हूँ कि सर प्लीज़ मुझे पानी पिला दीजिए, या फिर मैं कोई हैंड पंप या कोई पानी का कोई एक पॉइंट जो होते हैं वाटर पॉइंट वो सर्च कर सकता हूँ, या फिर मैं बोतल बंद पानी भी खरीद के पी सकता हूँ। इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास हैं जिनमें से मैं चुनता हूँ कि मुझे बोतल बंद पानी ही पीना है, बॉटल्ड या पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ही मुझे कंज्यूम करना है, ये मेरी वांट है। नीड है, मुझे प्यास लगी है और मुझे बॉटल्ड या पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ही पीना है, ये मेरी वांट है। अगला जो हमारा ऑप्शन है, अगला जो हमारा फीचर है वो है क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग्स। अब मेरी इस वांट को फुलफिल करने के लिए, मेरी इस नीड और वांट को फुलफिल करने के लिए मार्केट में बहुत सारे मार्केटियर्स अपने अपने ऑफरिंग्स मुझे देते हैं। कैसे ऑफरिंग्स? बहुत सारे ब्रांड्स हैं। एक ब्रांड कहता है कि हमारा पानी बहुत शुद्ध है, इसमें एक्स्ट्रा मिनरल्स हैं, या इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, या ये पानी हमने सीधा हिमालय के पहाड़ों में जाके वहीं पे उसको पैक किया है, या ये पानी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके बचाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो ऑफरिंग्स हैं, या अगर आप इस वाले पानी को पिएंगे तो आपको कहीं विदेश जाने का, घूमने का मौका मिल सकता है, या कोई कहता है कि हमारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो इसी पानी को पीते हैं, है ना। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स बताना, जिसको हम बोलते हैं USP, यूनिक सेलिंग प्रीपोजिशन, कि मेरे प्रोडक्ट में खास क्या है, क्यों मेरा प्रोडक्ट औरों से अलग है और आपके लिए बेस्ट है। तो इस तरह से बहुत सारे जो ऑफर्स हैं उनको बंडल्ड करके एक मेरे लिए ऑफरिंग क्रिएट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग द मार्केट ऑफरिंग। तो बहुत सारे मार्केटियर्स मेरी इन नीड एंड वांट्स को फुलफिल करने के लिए अपने अपने ऑफरिंग्स मुझे ऑफर करते हैं, जिनमें बहुत सारे फीचर्स रहते हैं। एक अच्छा मार्केट ऑफर क्या है? जिसमें हमारे नीड्स एंड प्रेफरेंस ऑफ पोटेंशियल बायर्स को ध्यान में रखा गया हो, यानी मेरी नीड एंड वांट्स और मैं क्या चाहता हूं को ध्यान में रख के जो ऑफरिंग दी जाती हैं उसको हम एक अच्छा मार्केट ऑफर बोल सकते हैं। देन थर्ड, ये तीसरा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिएगा, कस्टमर वैल्यू। अब इतने सारे मार्केट ऑफरिंग्स में से कस्टमर को ये चुनना है कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे पैसों की मैक्सिमम वैल्यू मुझे देगा।
आप समझिए, इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल सा सिद्धांत है कि जब हम ये पाते हैं कि हमारे खर्च किए हुए पैसे से जो यूटिलिटी मिल रही है वो यूटिलिटी ज़्यादा है, तभी हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। याद रखिए, बराबर होने पे भी नहीं खरीदते हैं, कम होने पे भी नहीं खरीदते हैं। एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। इस समय हम लोग बहुत शिकायतें करते हैं कि पेट्रोल बहुत महंगा है, पेट्रोल बहुत महंगा है। आप भी ये बात मानते हैं कि 80 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल, तो क्या करें करके बहुत महंगा है, और आता है न्यूज़ में भी, आप लोग देखते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आज, अभी ये पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए तो आप खरीदेंगे या नहीं, बाइक चलाएंगे या नहीं? आंसर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आंसर है यस। इसका मतलब हमारी निगाह में हम ये मानते हैं कि पेट्रोल अभी 20 रुपये सस्ता है, यानी 100 रुपये हो जाएगा तो भी मैं खरीदूंगा। 80 रुपये मेरे लिए महंगा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि 100 रुपये की चीज़ें मुझे 80 में मिल रही है, तब मैं खरीद रहा हूँ। मिलने वाली यूटिलिटी मेरे खर्च किए हुए पैसे से बहुत ज़्यादा है। इसको और थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, आज ही एकदम से ये पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, तब आप अपनी बाइक चलाएंगे कि नहीं? बाइक तो चलाएंगे, थोड़ा कम कर देंगे मान लिया, लेकिन बाइक तो चलेगी। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं कि हमारे लिए जो पेट्रोल है वो 120 रुपये सस्ता है, यानी 200 रुपये पे भी हम इसको खरीदने को तैयार हैं। इसका मतलब इसकी यूटिलिटी हमारे लिए 80 रुपये से बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे ही जो हमारा कस्टमर है वो इन सभी मार्केट ऑफरिंग में से अपनी वैल्यू को देखता है कि कौन से प्रोडक्ट से मिलने वाली यूटिलिटी या वैल्यू मुझे सबसे ज़्यादा है, कहाँ मेरे पैसे का मैक्सिमम रिटर्न मुझे मिलेगा। तो वो सभी प्रोडक्ट्स को कंपेयर करता है। आप लोग भी तो कोई मोबाइल खरीदते हैं तो अपनी किसी भी ऑनलाइन साइट पे जाके आप उसके फीचर्स को कंपेयर करते हैं, प्राइस को कंपेयर करते हैं, लोगों के रिव्यूज़ देखते हैं। उस वक्त आप क्या कर रहे हैं? एक्चुअली यू आर जजिंग द कस्टमर वैल्यू, कि कौन से प्रोडक्ट से आपको मिलने वाली वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और जब यहाँ आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फाइनली आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं। ये बात आप समझिए कि एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब है कि आपने पैसे दे करके और अपने प्रोडक्ट को परचेज कर लिया, यानी फाइनली आपने जिसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं, आपने डिमांड क्रिएट कर दी। डिमांड इकोनॉमिक्स में हम बोलते हैं विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे, है ना। और तीनों चीज़ें जब हमारे पास, नीड एंड वांट, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तब हम बोलते हैं कि डिमांड है। इसी तरह से एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब है फाइनली आपने चीज़ों को परचेज कर लिया, सेवाओं को, गुड्स को, सर्विसेज को परचेज कर लिया और पैसे दे दिए। सो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज मैकेनिज्म। ये बात समझ में आ गई? 4 फीचर्स हैं, नीड एंड वांट, creating market offerings, customer value and exchange mechanism. So these are the 4 features of marketing, and this question can be asked for 4 marks. Condition of the exchange, कब हम मानते हैं कि exchange है? 2 parties must be present. कौन कौन सी 2 parties? एक buyer, एक seller, या जिसको हम बोल सकते हैं एक marketer और एक customer. Each party should be capable of offering something of value to the offer. दोनों पार्टीज एक दूसरे को कुछ वैल्यूएबल ऑफर करते हो, दोनों के पास कुछ ऑफर करने के लिए हो। तो मार्केटियर जो है वो ऑफर करता है आपके लिए यूटिलिटीज इन फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और जो बायर है वो ऑफर करता है प्राइस। देन ईच पार्टी इज केपेबल ऑफ कम्युनिकेशन एंड डिलीवरी। ईच पार्टी शुड हैव फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अदर पार्टीज ऑफर, एंड फाइनली दे मस्ट बी विलिंग। तो वो जो इकोनॉमिक्स की भाषा है वो यहाँ पे एक तरह से हमने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो एक्सचेंज में हम नीड एंड वांट, एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे, इनकी बात करते हैं। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या बेचा जा सकता है? बेचने से मैं ऊपर उठ के बात करूंगा, किस चीज़ का विपणन हो सकता है, किस चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है। बिकॉज बेचना मतलब ओनली सेलिंग, एंड मार्केटिंग इज वाइडर देन सेलिंग। तो क्या बेचा जा सकता है? एनीथिंग इज ऑफ वैल्यू टू द अदर्स कैन बी मार्केटेड। कोई भी चीज़ जो दूसरे के लिए कुछ वैल्यू रखती है, जिसके लिए वो कुछ कीमत पे करने को तैयार हो जाए, हैप्पीली, विलिंगली, खुशी खुशी। एंड दिस कैन बी अ फिजिकल प्रोडक्ट, आपकी ड्रेस हो सकती है, आपके शर्ट, पैंट, टाई, शूज़ हो सकते हैं, या पेन ड्राइव, कंप्यूटर, एनीथिंग फिजिकल प्रोडक्ट। सर्विसेज हो सकती हैं, आइडियाज़ हो सकते हैं। आप जानते हैं कि जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स हैं या
साइकोलॉजिकल कंसल्टेंट्स हैं, या और भी बहुत तरह के जो एडवाइज़र्स होते हैं, ये लोग बहुत हैवी फीस चार्ज करते हैं और बदले में आपको आइडियाज़ देते हैं। इसी तरह से आप याद रखिए, डॉक्टर से आप क्या खरीदते हैं? डॉक्टर से आप दवाएं नहीं खरीदते, डॉक्टर से आप प्रेस्क्रिप्शन खरीदते हैं, एंड प्रेस्क्रिप्शन इज जस्ट एन आइडिया। देन पर्सन्स कैन बी सोल्ड, यहाँ पर्सन्स का मतलब है हायरिंग द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, हायरिंग द सर्विसेज ऑफ अ पर्सन, लेबर है ना, या कोई किसी भी सर्विस के लिए किसी को अपने लिए हायर करना, मेड एंड ऑल, आपके घर पे जो आते हैं। एक्सपीरियंस भी बेचा जा सकता है, इसीलिए आप याद रखिए जो एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स होते हैं उनकी सैलरी फ्रेशर्स के मुकाबले ज़्यादा होती है। एंड अ प्लेस कैन बी सोल्ड, जगह बेची जा सकती है। सो दीज आर द थिंग्स विच कैन बी मार्केटेड। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी मैं इसकी डेफिनेशन बता ही चुका हूँ। ये टॉपिक अभी अपने सिलेबस में तो नहीं है, लास्ट ईयर ही हटा दिया गया था, और लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही सिलेबस में ना हो लेकिन मार्केटिंग और सेलिंग को अक्सर लोग एक ही समझते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए, बीइंग द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। सो मार्केटिंग में कस्टमर की नीड्स पे फोकस होता है, जबकि सेलिंग में बेचने वाला इंपॉर्टेंट है और वो अपनी नीड्स पे ज़्यादा फोकस करता है। मार्केटिंग प्रोडक्शन से बहुत पहले शुरू होती है, जबकि सेलिंग प्रोडक्शन के बाद शुरू होती है। यहाँ हमारा सारा ओरिएंटेशन मार्केटिंग में कस्टमर के ऊपर है, जबकि यहाँ प्रोड्यूसर और प्रोडक्ट के ऊपर हमारा ओरिएंटेशन रहता है, बेचने वाले के ऊपर और क्या बेचना है के ऊपर फोकस रहता है। यहाँ हम प्रॉफिट कमाते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन से, जबकि यहाँ हम प्रॉफिट कमाते हैं अपने सेल वॉल्यूम को इंक्रीज़ करके। इसके बाद कैविएट वेंडर इज़ द प्रिंसिपल विच इज़ फॉलोड। कैविएट वेंडर का मतलब होता है लेट द सेलर बिवेयर। इसका मतलब मार्केटिंग में एक सेलर को बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ता है कि मेरे कस्टमर की क्या नीड्स हैं, कस्टमर्स के लिए मैं ध्यान रखूं। यानी यहाँ जो एक्टिव रहना है, जो चिंता करनी है, वो सेलर को, मार्केटियर को करनी है, जबकि यहाँ लेट द बायर बिवेयर, यहाँ जो खरीदने वाला है, यहाँ जिम्मेदारी उसकी बनती है कि वो क्या खरीद रहा है और किस तरह से चीज़ें खरीद रहा है। देन मार्केटिंग इज़ ए इंटीग्रेटेड अप्रोच। मार्केटिंग किसी एक कॉन्सेप्ट का नाम नहीं है, यहाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे फंक्शंस एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में परफॉर्म किए जाते हैं। किस लिए? अपने कस्टमर का सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ करने के लिए, मैक्सिमाइज़ करने के लिए। जबकि ये एक फ्रेगमेंटेड अप्रोच है और यहाँ सारा फोकस केवल ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप पे है कि एक बार बस कैसे भी चीज़ मेरे ओनरशिप से कस्टमर तक चली जाए, उससे मुझे कीमत मिल जाए, काम खत्म। मार्केटिंग एक लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट है और ये बहुत पहले शुरू होकर बहुत लंबे समय तक चलता है, और जो लोग मार्केट में लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं वो इसको फॉलो करते हैं। आपने कभी लोकल मार्केट से अगर चीज़ें खरीदी हों, जिसको हम लोग डेली या वीकली मार्केट बोलते हैं, तो वीकली मार्केट में आप जाएंगे तो वहाँ पे क्वालिटी की या फिर आपके सेटिस्फेक्शन की या फिर आपकी कंप्लेंट्स की चिंता कोई नहीं करता है। आप अगर जाएंगे और अपनी शिकायतें देंगे तो अगर उसका मूड हुआ तो एक्सचेंज कर देगा, नहीं तो हो सकता है कि झगड़ के वो आपको वापस कर दे कि नहीं, एक बार बेच दिया तो बेच दिया। जबकि मार्केटिंग में अगर आप 50 पैसे की टॉफ़ी, 1 रुपये की टॉफ़ी भी खरीदते हैं, एल्पेनलीबे या कोई भी और ब्रांड, उसके पीछे ढेर सारे डिटेल्स लिखे रहते हैं। उसका प्राइस क्या है, कब प्रोड्यूस हुआ है, एक्सपायरी डेट क्या है, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो कहाँ आपको कंप्लेंट करनी है, और बहुत सारी चीज़ें, किसने बनाया है, कहाँ मैन्युफैक्चर हुई है ना, इसका नेट वेट क्या है, ग्रॉस वेट क्या है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। क्यों? वाई? क्योंकि वो लंबे समय तक आपसे जुड़े रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो प्लीज़ लेट अस नो, हमें बताइए कि आप कौन सी हमारी सेवा से संतुष्ट नहीं हैं, हम उसको ठीक करेंगे, क्योंकि हमें आपसे लंबे समय तक जुड़े रहना है। जबकि सेलिंग एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देखती है, बस कैसे भी करके मेरा जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाए और एक बार मुझे कीमत मिल जाए, कॉन्सेप्ट ख़त्म, वहीं की वहीं उस प्रोसेस को हम एंड मान लेते हैं। कमिंग टू लास्ट पॉइंट, मार्केटिंग एक वाइड टर्म है
और सेलिंग एक नैरो टर्म है। कैसे? बिकॉज सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड टर्म एंड इट इंक्लूड्स सेलिंग एज जस्ट वन पॉइंट और वन फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो ये आप समझ में आ गया होगा। और अब अगर आप किसी को एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं कि सेलिंग मार्केटिंग नहीं है, मार्केटिंग सेलिंग से बहुत बढ़कर है। देन इसके बाद हम अगले टॉपिक में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग की। थैंक यू वेरी मच।